Let's just get into the word and then we're going to pray as how the Holy Spirit would lead. When the Lord gave Abraham a promise, जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया, Abraham was in his home, house. अब्राहम अपने घर में था. Abraham was a businessman. अब्राहम एक व्यापारी था. Not just a business that he started, but his father started. एक ऐसा बिजनेस जो उसने नहीं लेकिन उसके पिता ने शुरू किया. So for a son to join the father's business means it is a successful business. अगर एक बेटा अपने पिता के बिजनेस में जुड़ रहा है मतलब वो एक अच्छा सफल बिजनेस था. It is good to assume that he was rich. ये हम अगर कल्पना भी करना में इसमें कोई गलत नहीं है कि वो अमीर व्यक्ति था. So maybe during the evening time, Abraham would sit in his porch, the citadel, or the balcony. हो सकता है कि अब्राहम शाम के समय अपने बालकनी में बैठा होगा. He'll have a sip of tea, a cup of tea, taking a sip from a cup, and then everything sorted for him. और हो सकता है वहाँ पर बैठकर चाय पी रहा होगा और सब कुछ अच्छा होगा. That was Abraham before the Lord called him. और ये था अब्राहम परमेश्वर उसको जब बुलाने से पहले. But when Abraham was called by God, लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, he gave away a successful business. उसने अपना एक सफल बिजनेस जो है छोड़ दिया. It is not like leaving away 1,000 rupees and coming out. ये ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए छोड़ के आ गया. He left a successful business. वो एक सफल बिजनेस छोड़कर आया. He left all his networks. उसके जितने भी संपर्क के नेटवर्क थे वो सब छोड़कर आया. He left the market that he was doing business with. जिन लोगों के साथ वो बिजनेस करता था उसको भी वो छोड़कर आया. In fact, he took down the name board. यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस का नाम का नेम बोर्ड भी जो है वो हटा दिया. He sold off everything. जो भी उसके पास था उसने सब बेच डाला. And he went to a place that the Lord was telling him. और वो उस जगह की ओर गया जब परमेश्वर ने उसे कहा था जाने के लिए. And he has never known this Parmeshwar. और वो इस परमेश्वर को अभी तक कभी जाना नहीं है. So here is somebody who has not known this God, तो ये एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता, not seen this God, ना इस परमेश्वर को देखा है, hears about this God, उस परमेश्वर के बारे में सुनता है takes an instruction, और उसके आदेश को लेकर is willing to let go everything that he has achieved for generation. और वो उस आवाज को सुनकर अभी तक उसने पीढ़ी से पीढ़ी जो भी पाया है उसको छोड़ने के लिए तैयार है. And Jesus quotes this instance और यीशु मसीह इस हिस्से को भाग को लेकर बताते and हैं says that somebody found a expensive treasure in a field. और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक खेत के अंदर बहुत बहुमूल्य खजाना And then पाया he hid that. और वो उसने उसको छुपा दिया. He went back, वो वापस गया, took everything that he had, जो भी उसके पास था उसको लिया, sold it, बेचा bought that land. और उस जमीन को खरीदा. See, the story is so identical, right? ये दोनों कहानियां कितनी मिलती This is हैं. exactly what Abraham did. यही बिल्कुल अब्राहम ने भी Abraham saw that there is something that his whole generation missed and that he's going to get. अब्राहम ने वो देखा कि उसकी पीढ़ी ने जो खो दिया था वो अभी उसे मिलने वाला So है. in the parable what Jesus said, one of the ultimate thing that somebody has to do was sell everything because this field was expensive. यीशु मसीह उस दृष्टांत में ये कह रहा था क्योंकि ये खेत इतना महंगा इतना कीमती था उसको सब कुछ बेचना था. It was not just one portion of his land because the land was expensive. उसको सिर्फ जमीन अपनी जमीन का एक हिस्सा नहीं बेचना था क्योंकि वो बहुत महंगा जमीन था. The land was not expensive because the landowner knew that there was a treasure. वो जमीन का जो इतना कीमत इसलिए नहीं था कि मालिक को मालूम था वहाँ एक खजाना है. Am I speaking sense? It was expensive otherwise. वो वैसे भी उसकी कीमत बहुत थी. So what if somebody came to know that, or the owner came to know that there is already a treasure? क्या होता अगर मालिक को मालूम पड़ता कि वहाँ पर एक खजाना रखा है? Hey, then there is no chance that he's going to sell. तो फिर वो तो किसी भी हालत में बेचता नहीं.
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि क्यों हम इस परमेश्वर के वक्ता बने हैं? क्योंकि किसियों को इस सच्चाई का, इस संदेश का महत्व नहीं पता चला। बिकॉज अगर उस व्यक्ति को ये लैंड की कीमत और इसका ट्रेजर का प्रेजेंस अगर मालूम होता है, then he wouldn't sell that, right? But see, Abraham is not aware of where he is going. अब्राहम को मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा है, But this voice was so convincing लेकिन ये आवाज जो है उसको इतना हिम्मत दे रही थी that he was willing to let go everything that his generations have accumulated. यानी वो इतना कन्विंस था कि उस जो भी पीढ़ी से पीढ़ी तक उसने जो इकट्ठा किया था सबको छोड़ने के लिए तैयार था। He was willing to risk his future वो अपना भविष्य भी दांव पे लगाने के लिए तैयार था for the one voice, उस एक आवाज के लिए। and we are not willing to even sacrifice a day. हम अपना एक दिन भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। Then there is this one Abraham who said, I want to be serious because this voice is different from all the voices that I've heard. लेकिन अब्राहम कहता है कि मैं इस आवाज को गंभीरता से लूंगा क्योंकि ये आवाज बाकी सब आवाजों से अलग है। My father, great grandfathers, they were building these idols and selling because they were teaching that these idols can speak. मेरे पूर्वज जो हैं इस मूर्तियों को बनाकर बेचते थे ये सोचकर और ये कहकर कि ये बातें करती हैं। And there is this one God whose image I haven't made. लेकिन अब्राहम कहते हैं कि ये एक परमेश्वर है जिसकी मूर्ति में या फिर जिसका रूप मैंने नहीं बनाया है, But still it is speaking. लेकिन फिर भी वो बात करता है। But still what? It's speaking. This season I'm believing that the Lord is going to speak through anything and everything that you haven't prepared yourself. परमेश्वर इस सीजन में आपसे ऐसी चीजों के द्वारा बात करेगा जिसके लिए आपने अपने आप को भी शायद तैयार नहीं किया है। Maybe you build your business हो सकता है कि आप अपना बिजनेस and बनाएंगे you're expecting the Lord to speak through your business. और आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके बिजनेस के द्वारा आपसे बात करेगा। Maybe you have built your career हो सकता है कि आपने अपना करियर बनाया and है you're expecting God to speak to your finances through your career. और आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके करियर के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेगा। Maybe you have built your skill set हो सकता है कि आपने अपनी जो कलाएं है उसको बनाया है and you're expecting God to speak to your finance through your skill set. और आप इंतजार कर रहे हैं कि आप उस कला के द्वारा परमेश्वर आपकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में बात करेगा। Wait this season because you're going to hear a voice beyond your capacity. इंतजार करें क्योंकि इस सीजन में आप जितना सोचते हैं उस आपकी काबिलियत से भी बढ़कर परमेश्वर आपसे बात करेगा। Why Abraham responded? क्यों अब्राहम ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया? Because the voice came beyond what he could make. क्योंकि वो जितना जो बना सकता था उससे भी बढ़कर परमेश्वर से वो आवाज आई। It was beyond his working. अब्राहम ने क्यों सुना? आपको कल को आके एक अननोन नंबर से कॉल आएगा और बोलेगा तू ये सब छोड़ के जहां मैं देश जा रहा हूं वहां पे आ। अब जाओगे? नहीं जाओगे। फिर अब्राहम क्यों गया? क्योंकि अब्राहम को पता चला कि वो कॉल जो है वो बहुत ही ऊंचे स्थल से आया था और आपको पता चला कि वो कॉल जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से है। आप जाओगे? मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि वो कॉल कहां से है, एक उच्च स्थान से है। अगर वो कॉल आपके विबग्योर से होता तो आप उतना भाव नहीं देते क्योंकि आपने विबग्योर को देखा है। लेकिन अगर वो कॉल अमेरिकन प्रेसिडेंट से आता है, स्नेहाताई या इकडे, तो आप सब
केवल तुझे भी लेके जाऊंगा मैं। क्यों? कहां से बुलावा आया है आपको? आपके आज के स्थिति के बहुत उच्च स्थान से बुलावट आया है। Otherwise, why would Abraham leave everything? Because he believed that this voice is beyond what his hands could make. इसी कारण जो है अब्राहम जो है इस बात आवाज को सुनता है, क्योंकि वो उसके भी परिस्थितियों और उससे भी बहुत बढ़कर था। This God is beyond what we can make. ये परमेश्वर हमारे बनाने या सोचने से भी कई बढ़कर है। This God is beyond what we can construct. जितना हम बना सकते हैं उससे भी कई बड़ा है परमेश्वर। You can go ahead and construct the best duplex flats, but He is beyond what we can construct. आप सबसे उत्तम एक डुप्लेक्स फ्लैट बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी महान है। समझ में आया? समझ में आया आपको? So Abraham knew that this voice is from a higher dimension. अब्राहम जानता था कि ये आवाज एक बहुत उच्च स्थान से आ रही है। I am so convinced that this is not what I have prepared for. मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन की तैयारी मैंने नहीं की थी। Today at 10 o'clock I was sitting with Mama crying. I said, please pray for me. I don't have a word. आज सुबह 10 बजे मैं मम्मा के साथ बैठ के कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम क्या प्रचार करना है। I'm being very honest, guys. But I know that I hear from a dimension that is beyond my work. लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक ऐसे परमेश्वर से एक ऐसी आवाज को सुनता हूँ जो मेरे से भी परे है। I know that there were days in my week where I had crazy encounters with God. मैं जानता हूँ मेरे हर हफ्ता में जो है परमेश्वर से कई अद्भुत मुलाकातों को मैंने There were times where I had dreams from God. मैंने ऐसा कई समय हुआ है जब मैंने परमेश्वर से सपनों को पाया है। But Lord, for Sunday you didn't give me a word. लेकिन प्रभु संडे के लिए तूने मुझे एक शब्द नहीं दिया। And Mama hugged me and she prayed. और मम्मा ने मुझे हक किया और प्रार्थना किया। Thank you, Mama. So this word is not what I have prepared, but let me declare this, that wait for those days where you're going to hear from a higher dimension. मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि आप इंतजार करें उस आवाज के लिए जो कि एक उच्च स्थान से आती है। Because when you hear that, क्योंकि जब आप उसे सुनेंगे, you can't stay in Ulve. Stay in Ulve. आप उल्वे में खड़े नहीं रहेंगे। You can't stay where you are. आप जहाँ हैं आप वहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे। You feel like calling me. आपको मुझे कॉल करने के लिए लगेगा। You feel like meeting the church once more. आपको लगेगा कि एक और बार कलीसिया से मिलूं। You feel like maybe taking a rented car and going for a mission. आपको लगेगा कि एक कार भाड़े पे लेकर जो है मिशन में जाऊं। You feel like we should have a 24-hour prayer. आपको लगेगा कि एक 24 घंटे की प्रार्थना होनी चाहिए। So this is the result of hearing from a higher dimension. ये एक उच्च स्थान से आवाज को सुनने का परिणाम है। Where is the construction guy? Contractor. You would want to leave everything and search for the source of this voice. आप सब कुछ छोड़कर ये आवाज कहाँ से आ रही है उसको ढूंढेंगे। That is what Abraham did. और यही अब्राहम ने किया। He said, this source is beyond what I can manufacture. वो ये कहने लगा कि ये स्रोत जो है जितना मैं बना सकता हूँ उससे भी बड़ा है। Let me tell you, this source is beyond what you can make. ये स्रोत आप जितना बना सकते हो उससे भी बड़ा है। And then Abraham left everything. और अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे आप विदगर का नौकरी छोड़ दिया और नया बैग लिया, सैमसोनाइट का पैक कर दिया और आप घर पे बैठे हैं कि वीजा कब आएगा। वैसे ही अब्राहम अभी बैठा है कहाँ पे? एक झाड़ के नीचे। दिस हर्ट्स। आप कहाँ बैठे हैं? पूरा बैग भर के तैयार है क्योंकि आपने सुना कहाँ से है? प्रेसिडेंट से सुना है, बट अब तक वीजा नहीं आया, अब तक टिकट नहीं आया
और हर दिन आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और आप कहाँ बैठते हैं? आपके फ्रंट डोर में बैठते हैं। अभी आएगा पोस्टमैन। कौन बैठा है वहां पे? Abraham. He's sitting where? Underneath a tree. Abraham, किधर है तेरा बालकनी? तेरे पास बालकनी था ना? बट आज तू कहाँ बैठा है? Under a But we are not sitting under a tree. We are sitting under an instruction. एक पेड़ के नीचे नहीं, लेकिन एक आदेश के अधीन है। 18 verses 1, Genesis 18. The Lord appeared to Abraham near great trees of Mamre while he was sitting at the entrance of his tent in the heat of the day. उत्पत्ति 18 का 1। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। Abraham, क्या हो गया? तेरा घर तंबू का बना है, मतलब टेंट। लाइक तू तो अच्छा कमरे में था ना? It was set for you, right? But today you are sitting where? Under a tree at the entrance of a tent, not knowing what you're doing. लेकिन आज तो एक झाड़ के नीचे बैठा है अपने तंबू के द्वार पर और पता नहीं क्या करने जा रहा है। Relatives calling you and say, क्या कर रहा है तू? Do you not want to do something in your life? What are you doing sitting under a tent? तुझे अपने जिंदगी में कुछ करना नहीं है, तू तंबू के नीचे बैठ के क्या कर रहा है? What are you doing with your life? तू अपने जीवन से क्या कर रहा है? This is the question that Abraham heard. ये एक सवाल था जो अब्राहम ने सुना। And you know, Abraham's father also was there. अब्राहम का पिता भी वहां था। When people say outside of your family doesn't matter much. अगर आपके परिवार के बाहर के लोग बोलते तो इतना फर्क नहीं पड़ता। But when people from within, see, that's not written in the Bible. But I know it hurts when people from within says कि क्या फायदा तो इस परमेश्वर के खोज में इस तंबू के नीचे, ये तंबू के सामने, इस झाड़ के नीचे बैठने का क्या फायदा? It hurts. ये दुख देता है। Abraham, hearing the Lord, knowing that there is a promise, is not worried about where he is today. अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनता है और उसे एक वादा मिला है, इसलिए वो चिंता नहीं करता है कि आज वो कहाँ है। So what is the reason for Abraham being carefree? अब्राहम क्यों चिंता नहीं कर रहा है? क्यों चिल मार रहा है वो? क्योंकि उसे पता है कि उसने सुनी हुई आवाज वो उसने बनाई हुई आवाज नहीं थी। क्योंकि आपका भरोसा उस आवाज पर है, आप तैयारी के साथ कहाँ बैठे हैं? पोस्टमैन के इंतजार में बैठे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ प्रैंक नहीं हुआ है। See, the calling of God is not a prank. परमेश्वर की बुलाहट एक प्रैंक नहीं है। It might look like somebody pranked you. ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको No, I'm being चुना serious, लगाया। guys. It is easy to have confidence in God when you have 2 murgis. जब 2 मुर्गी हाथ में है तो परमेश्वर पे भरोसा करना आसान होता But है। when 1000 murgiya comes, you know, he is doing a poultry business, huh? So जो people जिसको नहीं पता है उसके बाद, तो जब 1000 आता है तो आपको परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस कम और 1000 के ऊपर ज्यादा आने की संभावना है। द्वारकेश की जब आपका 4 नए स्टॉल्स लगेंगे तो आपको आज जितना परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस है उससे 4 गुना, I like the way he responded, 4 गुना परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस होगा। ये है असली आवाज सुनने का फर्क। बैठ जाइए, प्लीज सिट। ये है क्या? परमेश्वर की आवाज सुनने का कॉन्फिडेंस। एंड दिस इज व्हाट मूव्ड अब्राहम। और इसी वजह से अब्राहम भी यहाँ पर कुछ कार्य को करता है। अब्राहम ने, देखो, ये हम लोग 12 में परमेश्वर ने उससे बात किया, 18 में हमने फिर से परमेश्वर आया उसके पास। तो 12 से 18 2 दिन की बात नहीं है, सालों का जर्नी किसने तय किया? अब्राहम ने। 3 महीना हम मुश्किल से काट पाते हैं,
But you see that this Abraham is believing the voice. So today I want to reassure somebody. Have trust in the voice that has called you. जिस आवाज ने आपको बुलाया है उस परमेश्वर पर भरोसा रखें. Believe, because that voice is not from something that you could make for yourself. ये विश्वास करें कि ये आवाज आपकी बनाई हुई कुछ चीजों में से नहीं This आई is है. coming from where you can't adulterate. ये आवाज एक ऐसी जगह से आई है जहां पर आप कुछ मिलावट नहीं कर ये सकते. बुलावट आपको वहां से आया है जहां पर आप अपना कुछ फ्रेम नहीं कर सकते. Can we spend the next 30 seconds praying? Father, I want to have confidence in my call. I'm confident of my call. Come on, declare this to your spirit. I am confident of my call. मुझे मेरे बुलावट पर यकीन है. रबा शिथा रबा. मुझे मेरी चंगाई पर यकीन है. मुझे मेरी आजादी पर यकीन है. And when Abraham was waiting and waiting, the Lord appeared to Abraham. जब अब्राहम इंतजार कर रहा था तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया. I am waiting in the entrance of my tent. मैं अपने तंबू के द्वार पर इंतजार कर रहा हूँ. My shade is a tree that I have not planted. एक ऐसे पेड़ से मुझे छांव मिल रही है जिसको मैंने लगाया है. But Lord, today when I encounter you, please do not pass me by. प्रभु, लेकिन आज जब मेरी मुलाकात तुझसे हुई है तो मेरे पास से चले मत जाना. Abraham looked up अब्राहम ने ऊपर देखा and saw. और देखा. So today I want to encourage you to look up. इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि ऊपर की ओर अपनी नजर को लगाएं. क्या मतलब है? अब्राहम ऐसे थोड़ी बैठा था. The spiritual significance, he wanted to see beyond his today. अब्राहम जो है अपने आज से परे जो है देखना चाहता He था. dared looking into the next 30 years. उसने ये चुनौती ली कि वो अगले 30 साल की ओर आगे देखेगा. Abraham looked up अब्राहम ने ऊपर की ओर देखा and saw 3 men. और 3 लोगों को खड़े देखा. What if Abraham looked down? अगर अब्राहम नीचे देखता तो क्या देखता? He would have missed an encounter. वो वहां पर एक मुलाकात खो दे था. Look up ऊपर की ओर देखें into your next 30 years. अपने अगले 30 साल की If ओर. you can look up into your next 10 years. अगर आप अपने आगे की 10 साल की ओर If you दृष्टि can कर look सकते up हैं. into your next 3 years. अगर आप अपने अगले 3 साल की If ओर you दृष्टि can कर look up सकते हैं. into your next 10 years. अगर आप अपने 10 साल अगले 10 साल You की ओर ऊपर will देख not सकते हैं. miss this encounter. आप इस मुलाकात को नहीं The खोएंगे. reason why we are missing our 3 men क्यों हम अपने इन 3 लोगों को खो देते हैं? is because we are looking down. क्योंकि हम नीचे देख रहे We हैं. are looking at today. हम अपने आज को देख रहे We are हैं. looking at our scarcity. हम अपनी कमियों को देख रहे We are हैं. looking at the sicknesses that we are surrounded with. जिस बीमारी से हम घिरे हुए हैं हम उसे देख रहे We हैं. are looking at the lack that we are having. हमारे पास जो चीजें नहीं है उसको हम देख रहे But हैं. today this voice rings in your head लेकिन आज ये आवाज आपके कानों में बार बार गूंज रही है and encourage you to look up. और आपको हिम्मत दे रही है कि आप ऊपर की ओर दृष्टि करें. आप जाके पोस्ट ऑफिस जाना है. That is the meaning of looking up. Look beyond your daily means. अपने हर दिन की जो जरूरत है उससे परे आप देखें. Look beyond. Look beyond. अपने परिस्थिति से बढ़कर आगे परे देखें. Why would Holy Spirit write Abraham looked up? क्यों पवित्र आत्मा लिखेगा कि अब्राहम ने ऊपर की ओर दृष्टि की? It is for Legion to be encouraged. वो लिजिन के प्रोत्साहन के लिए I था. don't want to speak about you guys. Because I need this word more than anybody today. आज मुझे आप इस वचन की जरूरत है आप में से किसी से बढ़कर. So, if it is speaking to me, I'm sure it is speaking to each one of you. अगर ये मुझसे बात कर रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ आप सबसे भी बात कर Many रहा of है. us are looking behind.
हम में से कई लोग पीछे की ओर देख रहे हैं, But the Lord says, look up. लेकिन परमेश्वर कहता है ऊपर की ओर दृष्टि कर, Don't look at the past. अपने अतीत को मत देख, Don't look at the porn that you watched yesterday. नहीं, सुन दो. The enemy shouldn't bring guilt to what you did yesterday. जो आपने कल किया उसके विषय में शत्रु आपके अंदर एक I'm not गिल्ट ना encouraging you लेके to आए। watch it, but I'm saying you need to look up. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऊपर की ओर दृष्टि The करें। reason why you are so entertained in such pornography is because you're looking down. आप क्यों इन अश्लील चित्रों में इंटरेस्ट ले पा रहे हैं? क्योंकि आप नीचे देख रहे You're हैं, not able to look up. आप ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। Today we need to declare that I am going to what? Look up. आज आप इस बात की घोषणा करेंगे कि Suddenly मैं I ऊपर feel को that I दृष्टि have करूं। lost few people here. Be honest to the Holy Spirit आत्मा से ईमानदार रहें and declare that I am going to look up. और आप इस बात को घोषणा करें, This मैं week ऊपर की I'm ओर going to दृष्टि look करूंगा। up. इस हफ्ता मैं ऊपर की ओर दृष्टि I'm करूंगा। going to look up beyond some pictures. मैं आप अपनी नजरों को ऊपर अपनी लगा के रखूंगा And then I'm going to see an encounter. और वहां मैं एक मुलाकात को The reason पाऊंगा। why you're not able to have this encounter is because you have surrounded yourself by looking down. आप क्यों इन मुलाकात को मिस कर देते हैं? क्योंकि आप हमेशा आपके चारों ओर आप नीचे ही देख रहे हैं। The spirit of lust बुरी अभिलाषा की has to आत्मा break from each one of us. हम में से सबसे दूर होना है। Because why? We are called to look up. Father, every spirit of guilt go out of this room in the name of Jesus. गिल्ट की हर एक आत्मा यीशु के नाम में इस कमरे से Let दूर the हो जाए। spirit of boldness come into us right now. प्रभु हिम्मत की आत्मा हम में इधर प्रवेश That करे I am not identified as somebody who did a mistake in the past. कि प्रभु मैं एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा पहचाना ना जाऊं जिसने पहले पाप किया है, But I am somebody who is cleansed by the blood of God because of his death on the cross. लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। Abraham was not concerned that he was sitting under a tree. What he saw is 3 men. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he took his time, close to what he was doing, yawned a couple of times, then thought to himself, should I go inside the tent? ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा है वहाँ पे कि उसने देखा फिर उसने अंगड़ाई लिया, मन में सोचा, फिर पड़ोसी को पूछा। नहीं वहाँ पे लिखा है वो घाई किया। He rushed. Come on, tell this. He rushed. दौड़ा. He rushed. Robin എന്താ ഓൺ ചെയ്തേ? Rushed. ഇച്ചിരി മൈക്ക് കൂടെ പറ. He rushed. क्यों रश करते हैं? तो जब अब्राहम को पता चला कि ये 3 मनुष्य वहां पर आए हैं और उसे पता चला कि ये 3 मनुष्य साधारण लोग नहीं है, क्योंकि अब्राहम काफी दिनों से उधर है और उसकी आदत है। तो जब आपके जीवन में कुछ असाधारण चीजें होती है, जैसे कि आज का वचन, तो आप क्या करते हैं? आप रश करते हैं, घाई करते हैं, आप पास्टर को तंग करते हैं, आप लीडर्स को तंग करते हैं अच्छी रीति में कि पास्टर अभी हमें घाई करना है, अभी हमें जो भी कर रहा है उसमें घाई करना है। He hurried is what Bible says. Abraham looked up, saw 3 men. When he saw, he hurried from the entrance to his tent to meet them and bowed low to the ground. He said, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Do not pass what? Your servant by. मतलब ये 3 लोग अब्राहम से मिलने नहीं आया। ये 3 लोग कहाँ जा रहे हैं?
सदोम और गोमोरा की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह यरीहो जा रहा था और फिर एक अंधे ने उसके रास्ते जस्ट बाय कॉलिंग आउट द नेम। यहां पे इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल डे फॉर अब्राहम। ये अब्राहम के लिए एक साधारण दिन हो सकता था। It can be a normal Sunday where some of you come late. But if you are able to look up, it will not be normal. अगर आप ऊपर की ओर नजर उठाते हैं तो ये साधारण नहीं होगा। It is normal for everybody. ये सबके लिए साधारण है। But that day, लेकिन- Abraham said, it is not normal because I am going to change my course just by an honor, just by a way of honor. लेकिन अब्राहम कहता है कि आज ये मैं साधारण नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अपने आदर करने के द्वारा अपने जीवन के मंजिल को बदलूंगा। He went, वो गया, hurried, went, bowed down दौड़कर गया और वहां गिरकर दंडवत किया and said, do not pass me by. और कहा कि मेरे पास से चले मत जाना, Do not pass me by. मेरे पास से चले मत जाना। Let this be our prayer today. ये आज हमारी प्रार्थना होने पाए। Father, let this word not pass me by. प्रभु, ये वचन मुझे छोड़कर ना चला जाए। Maybe I don't see 3 men, शायद मैं 3 व्यक्तियों को नहीं देख but रहा I'm हूँ, hearing this voice. लेकिन मैं इस आवाज को सुन रहा हूँ। Maybe I'm not hearing my name today, शायद प्रभु मैं अपना नाम तो नहीं सुन रहा हूँ, but this word is speaking to you. लेकिन अगर ये वचन आपसे बात कर रहा है, Don't be hurt by your past. अपने पहले के जीवन से दुखी ना हो। Don't limit yourself to your tent. अपने तंबू के अंदर अपने को सीमित ना करे। Don't think that this tree of memory is your final destination. ये मत सोचे कि ये ममरे का जो झाड़ है वो आपका अंतिम लक्ष्य है। Because when you call out onto the name of Yeshua, क्योंकि जब आप यीशुआ के नाम को पुकारते He हैं, stops where He finds you. जहां पर वो आपको मिलता है वो वहां रुक जाता And है, then He releases a blessing that will trigger your next course of action. तब वो आपके ऊपर एक ऐसी आशीष देता है जो आपके जीवन को, आगे के जीवन को निर्धारित करता है। Let that day be today. वो आज का दिन होने पाए, Let that day be today. वो आज का दिन होने पाए, Let that day be today. वो दिन आज का दिन होने पाए, Let that day be today. वो दिन आज का दिन होने पाए। Verse 6, so Abraham hurried into the tent to Sarah. आयत 6, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया। अब्राहम कितने साल का है? 75. ये 75. इसके बाद नहीं, अगले साल 99 पे। दिस ईयर नेक्स्ट टाइम। कितने साल? कितने साल? अभी उठ के पीछे जाने बोले तो कैसे हम लोग उठेंगे? परमेश्वर किसे दिखा? अब्राहम को। किसको घाई आई? अभी सारा क्या करने का उसके लिए? पर जब परमेश्वर के दास ने वो एनकाउंटर को पाया तो सारा को देख के बोलते हैं, भाई अभी तुझे भी क्या करना है? क्विक, वहां पे लिखा है क्विक, ही सेड, get 3 shares of finest flour and knead it and bake some bread. Then he ran to the herd and selected a choice tender calf and gave it to a servant who hurried to prepare it. He then brought some curd and milk and the calf that had been prepared and set them before them. While they ate, he stood near them under a tree. हिंदी में पढ़ेंगे इसे? 6, 7 और 8। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, हाँ 3 सा मैदा जल्दी से गूंद। हाँ, कैसे? जल्दी से गूंद। क्यों? जल्दी से। सारा, मुझे पता है तू कितने साल की है?
25 साल पुराने, 75 इयर्स। कोई है यहाँ पे 75 इयर्स? 10 इयर्स डिफरेंस। 85 मतलब 75 से भी ज्यादा, मैं तो अच्छा बोल रहा था। 85 इयर्स की अम्मची, और आपचन आके बोल रहा है क्विक जल्दी कर। ना कान सुनता है। But see the haste, the youthfulness in Abraham when he had an encounter. जब अब्राहम का परमेश्वर से मुलाकात हुआ, देखिए कितनी He's जवानी है, contagious. उसकी जवानी दिखाई दे He's रही है। contagious. He's contagious. फैलती है। So सारा ये नहीं बोला, अब तक तो ऐसा नहीं बोला मेरे को, आज क्यों ऐसा बोल रहा है? सारा complimented Abraham's speed. सारा ने जो है अब्राहम की तेजी के हिसाब से उसने काम किया। Thank God that we have husband and wife who complement each other. प्रभु का धन्यवाद देते हैं ऐसे पति और पत्नियों के लिए जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, Who doesn't slow down but complement. जो धीरे नहीं लेकिन एक साथ चलते हैं। अगर सारा चाहती ना, so it is not just Abraham, it is the willingness of Sarah. ये सिर्फ अब्राहम नहीं लेकिन सैरा की तैयारी भी थी। We preach about Abraham's haste, हम अब्राहम की जल्दी के बारे में but पढ़ते हैं, his haste would fetch no reward if Sarah doesn't function in the same speed. लेकिन उसका कोई फल नहीं होता अगर सारा भी उसी स्पीड में काम नहीं करती तो। So that's how marriage works. और ऐसा एक विवाह कार्य करता है That you don't pull the raft to each side, कि आप नाव को दो अलग अलग कोने में नहीं ले जा रहे but हैं, you do it together. लेकिन आप दोनों एक साथ मिलकर उसको चला रहे हैं। सारा को पता नहीं है कि ये तीन लोग कौन है, पर सारा को पता है कि मेरा पति कौन है। वो बेतुकी बात नहीं करता। Sarah knows that the encounter of Abraham is true. सारा जानती है कि अब्राहम की जो मुलाकात हुई है वो सच है। वो ये नहीं पूछ रहे कि देख तू आज तंबू के बाहर है, तू भी और मैं भी, कितना अच्छा घर था हमारा, सब बेच के तू आज झाड़ के नीचे, नहीं जा मैं नहीं करती, नहीं। So this is what marriage looks like. This is how marriage should look like. This is how ministry should look like. ऐसा दिखना चाहिए सेवकाई और विवाह। So it is not easy for Sarah. Please don't just say कि एक लाइन में सारा ने बना दे। No, सारा को भी मुश्किल था. She also came away from her family. सारा भी अपने परिवार को छोड़कर आई। She is with him because it is not Sarah who heard, it was Abraham who heard. वो अब्राहम ने आवाज सुना था, सारा ने नहीं सुना था। So maybe it was easy for Abraham to get convinced, but for Sarah, उसने एक आदमी का आवाज सुना है, परमेश्वर का आवाज नहीं सुना उसने। So see the trust that she had on Abraham. देखिए अब्राहम के ऊपर उसका कितना भरोसा था। You know, I was hearing somebody who said, marriage should be like you trust your partner to go for a war. किसी ने कहा कि विवाह ऐसा है कि आप अपने साथी पर भरोसा कर रहे हैं एक युद्ध में जाने के मतलब लिए। आप सामने से वार कर रहे हैं और आपका साथी पीछे से आपका वार नहीं कर रहा है। So you can trust your partner that you would go even for a war. आप अपने साथी पे इतना भरोसा करते हैं कि आप साथ में एक युद्ध के लिए जा सकते हैं। हम तो भाजी लेने के लिए ट्रस्ट नहीं करते। मेरा हिसाब हर सब 2 किलो है, तो बहुत मुश्किल, सब 2 किलो है। आलू 2 किलो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप धनिया 2 किलो।
So that is what Abraham and Sarah had. Sarah trusted Abraham's vision. सारा अब्राहम के उस दर्शन पर विश्वास करती थी And Sarah received an impartation from Abraham, that speed, फटफट उसने बनाया. और सारा ने अब्राहम से उस बात को पाया. फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया. देखो यहाँ पे प्रूफ है कि परमेश्वर नॉनवेज खाता है. तो आगे से कलीसिया में नो वेज. Just kidding guys. But see, Abraham went to the herd. वो खुद जाता है, उसके दास को नहीं बेचता. See, this is something that you do for the house of the Lord. ये कुछ है जो आप परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं. You can hire a contractor to do the painting. आप पेंटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को रख सकते हैं. हायर करो, बट आप भी आओ. ये थोड़ा इधर से अच्छा क्यों? दैट इज व्हाट अब्राहम डिड. उसने बनाया नहीं, उसने काटा नहीं, उसने सेवक को दिखाया. बट चूज किसने किया? पेंट का कलर किसने तय किया? So this is what the kingdom of God looks like. And Abraham, he went fast, घाई किया. He chose one animal, वहाँ पे prepare किया. उसने खाना चकाए नहीं. वहाँ पे किधर भी नहीं लिखा कि they ate the food and they said this. As soon as the food was brought, वहाँ पे लिखा है Abraham stood near them. They asked what? सारा कहाँ है? सारा कहाँ है? अच्छा खाना बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. So it was a good food and they asked for Sarah. और वो सारा कहाँ है ये पूछते हैं. And while they were having the food, one of them said, और जब वो खाना खा रहे थे, उनमें से एक ने पूछा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा. this time next year, this time अगले साल इस समय पर. next year. फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. When God made sun and the stars, जब परमेश्वर ने सूरज और तारों को बनाया, it was not just for the light. वो सिर्फ ज्योति के लिए नहीं था. It was for what? नियत समयों, As a sign for marked sacred times वे चिन्ह, and नियत days समय, and years. दिनों और वर्षों के कारण. It was for what? चिन्ह, Marked sacred days and seasons and months and years. years. Sacred word आपने ध्यान दिया वहाँ पे? So days are sacred, years are sacred. And what we see here is this three men में से एक आदमी आके कहता है next year this time. So he is declaring that this encounter that you are having is on a sacred day, and this is going to repeat the next year as well. तो वो कुछ इस प्रकार कह रहा है कि आज जब तुम्हारी मुलाकात हो रही है, ये एक पवित्र दिन है, और जब अगली मुलाकात होगी वो भी एक पवित्र दिन होगा. So many a times we don't experience success is because we are unaware that there are days that are sacred in the eyes of God. हमें कई बार सफलता नहीं मिलती क्योंकि हम नहीं जान पाते इस बात को कि कुछ ऐसे दिन हैं जो पवित्र ठहराए गए हैं. There are seasons that are sacred in the eyes of God. कुछ There are ऐसे- years that are sacred in the eyes of God. कुछ ऐसे वर्ष हैं जो परमेश्वर की नजर में पवित्र हैं. Now I am learning about this, so please don't ask me more questions. But trust God as I say this. जब मैं ये कह रहा हूँ तो परमेश्वर पर भरोसा रखें. We are entering into a sacred season हम एक पवित्र ऋतु में जो है प्रवेश कर रहे हैं, where we're going to see the
things we lost would be restored. जहाँ पर हम देखेंगे जिन चीजों को हमने खोया है उसे हम वापस पाएंगे. 25 years of delay got restored in 1 year. 25 साल की जो देरी थी और जो कमी थी परमेश्वर ने उसको 1 साल में पूरा किया. So there were multiple years that was happening. तो कई साल ऐसे हो रहा था. But for Abraham's life, it was the 100th year. पर अब्राहम के लिए वो 100वां साल था. For Sarah, it was 90th year. सारा के लिए वो 90 साल था. For maybe somebody else, it was a different year. शायद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग साल होगा. नियुक्त समय. Is there anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Is there anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? We have entered this new season, church. हम इस एक नए ऋतु में प्रवेश कर चुके This हैं. year is our visa year. ये साल हमारा वीजा का साल है. This year is our year of success. ये साल हमारे सफलता का साल है. This year is a success of the year of restoration. ये साल जो है पुनर्स्थापना का साल है. What Abraham did जो अब्राहम ने किया was carried by Sarah. वो सारा उसको लेकर चलती थी. The act of Abraham in honoring the 3 men जो अब्राहम ने उन 3 लोगों को आदर देकर किया made Sarah experience a blessing. उसकी वजह से सारा ने एक आशीष को पाया. So don't wait for your Sarah to experience an encounter. अपने सारा का इंतजार ना करे एक मुलाकात के Your लिए. encounters आपकी मुलाकात should lead Sarah to their encounters. वो आपके सारा को एक मुलाकात की ओर ले जाए. Yeah. Sometimes it's difficult to convince Sarah. कई बार सारा को मनवाना बड़ा मुश्किल होता है. Apply force in the spirit. आत्मा में फोर्स लगाएं, ताकत लगाएं. Force in the spirit. आत्मा में जोर लगाएं. It can be your wife, it can be your husband. वो आपकी पति, आपकी पत्नी हो सकते Your हैं. Sarah can be your business. आपका सारा आपका बिजनेस हो सकता है. Yeah, it can be anything. वो कुछ भी हो सकता है. Force in the spirit. आत्मा में उसमें जोर लगाएं. Tell it to your business next year this time. अपने बिजनेस को कहें अगले साल इसी समय. Look into your spirit and say, next year this time I will have a news to rejoice. अपने अंदर ही कहें कि अगले साल इस समय मुझे एक खुशखबरी होगी मेरे पास. And the ugly sal based on your faith. It can be tomorrow. It can be next month. It can be 5 years down the lane. But I believe let our faith increase to a point that it is in the appointed time. अगले साल हो सकता है कि सबके लिए अलग हो. किसी के लिए कल हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना या 5 साल हो सकते हैं. लेकिन आपका विश्वास इतना हो कि वो सही समय पर, नियत समय पर होगा. Sitting with not knowing what to do today, आज आपको नहीं मालूम कि क्या करना है, to knowing what you're going to expect in the next year. वहां से लेकर ये जानना कि आप अगले साल क्या पाएंगे. That's called clarity of vision. वो इसको कहते हैं दर्शन का क्लियर होना. Yeah. That's called what? Clarity of vision. आपको लगता है उसके बाद फिर से मनमरे के नीचे बैठा था वो? नहीं. He was anticipating a child. वो एक He बच्चे was के working इंतजार में towards था. having a child. वो एक बच्चे के आने के तैयारी कर रहा था. He was preparing his house, वो अपने घर को तैयार कर रहा था, cleaning it, उसको साफ कर रहा था, making everything ready for Sarah. सारा के लिए सब तैयार कर रहा था. And maybe after 4 months, 5 months, he saw the tummy of Sarah. और 4-5 महीने के बाद उसने सारा का His पेट देखा. excitement grew, उसका खुशी बढ़ गया and he started believing more. और वो और अधिक विश्वास करने लगा. Yes, the faith of Abraham in the 7th month is more than his faith in the first month of pregnancy. अब्राहम का 7वें महीने में जो विश्वास था वो पहले महीने से बढ़कर था. It's okay to have doubt in your first months. हो आपके पहले महीने में अगर शक है तो वो ठीक है. I hope you are understanding what I'm trying to say. But your faith is going to grow
लेकिन आपका विश्वास बढ़ेगा, because you're going to see your promise manifesting. क्योंकि आप अपने वायदे को पूरा होता हुआ देखेंगे। You're going to feel your promise manifesting. आप अपने वायदे को पूरा होता हुआ देखेंगे। Welcome to the season of restoration. इस पुनर्स्थापना के सीजन में आपका स्वागत है। Father, we thank you that you have spoken to us प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे आज and that you बात have किया है, released a word into our spirit. कि आज आपने हमारे लिए एक वचन को रिलीज किया है। Father, we see प्रभु, हम ये देखते that हैं this promise is manifesting. इस वायदे को पूरा होते हुए। We believe you, Jesus. हम आप पर विश्वास करते हैं From प्रभु। sitting without purpose बिना उद्देश्य के बैठे रहने से लेकर to having a worldwide vision. कि एक बहुत बड़ा एक दर्शन को लेकर That is what we're going to grow in this next season. उस एक स्तर तक प्रभु हम इस अगले ऋतु में बढ़ेंगे। From thinking about 1,000 square feet in Kharghar खारगर में 1000 स्क्वायर फीट के बारे में सोचने से लेकर to 4,000 square feet in Kharghar, 4000 स्क्वायर फीट खारगर में देखने के to लिए multiple auditoriums in India, इंडिया में कई ऑडिटोरियम्स हमारे होंगे, to churches around the world कलीसिया is दुनिया what भर we में are believing, Lord. इस बात के लिए हम विश्वास करते Father, हैं। thank you that you have birthed this promise into the Spirit प्रभु, today. हम धन्यवाद देते हैं कि इस वायदे को तूने हमारी आत्मा में जन्म We दिया है। thank you because we're going to come out with beautiful albums in this season. प्रभु, इस सीजन में हम अच्छे एल्बम्स को रिलीज करेंगे। We thank you because you're going to give us new strategies. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें नए नीतियों Father, को this दे रहा season है। we want to feel it physically. प्रभु, इस सीजन में हम उसे अपने हाथ शारीरिक रूप से उसको महसूस करना चाहते We हैं। thank you for your presence, Lord. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं।